Good morning, everyone. Welcome to the new lecture of Fluid Mechanics 2. In previous lectures, we have completed unit number 4. If you remember, that was rapidly varied flow. If you remember that gradually varied flow, rapidly varied flow, these are the topics which we have completed in previous lectures. It was a part of unit number 4. Okay. So unit number 4 is completed. Okay. So today we will move to the next unit, that is hydraulic models. It is very short unit. Okay. This unit is considered to be very short. Okay. It will hardly take 3 or 4 lectures. Okay. We will complete this unit within 3 or 4 lectures. Hydraulic models. This is very easy unit. Okay. And at the same time very short and very easy. Okay. So today we will start unit number 5. Okay. That is hydraulic models. So let's start. See, we will start with hydraulic models. Okay. I'll just give you a brief introduction about the content. See, what you have to study in this: difference between model and prototype. Okay. In fluid mechanics 1, dimensional analysis, there was a one unit called dimensional analysis. It was unit number 6 in FM1. So you will know about the model and prototype. I think you know about the model and prototype because it was the part of unit number 6 of fluid mechanics 1. But we will again, I will remind you about the model and prototype. Then we will see what is similitude, what is similarity between model and prototype. Okay. Then we will see the model laws, very important: Reynolds model law and Froude model law. Then types of model: distorted, non-distorted. Okay. Then Froude's method of determining resistance to partially submerged object like ship. Okay. So we will see these topics. First, we will see what is model analysis, what is model, what is prototype. We will see this in detail. So let's start. See, we will start from here. Model analysis. Okay. So, see here. Model analysis. First, we will see what is model analysis. Okay. See, for predicting the performance of hydraulic structures such as dams, spillway, or hydraulic machines such as turbine pumps, before actually constructing or manufacturing, okay, the models of the structure or machine are made and tests are performed on them to obtain the desired information. मैं आपको सिंपल बताता हूँ क्या होता है. ठीक है, देखो, फॉर प्रिडिक्टिंग द परफॉर्मेंस, जैसे कि कोई भी हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर आपको बनाना है कहीं पर, सपोज आपकी कोई कंपनी है में आप काम करते हैं, वहाँ पे आपकी कंपनी कुछ कॉन्ट्रैक्ट मिला है डैम बनाने का, स्पिलवे बनाने का, ठीक है ना, या फिर कोई भी टरबाइन या पंप बनाने का. तो हम क्या करते हैं कि बिफोर कंस्ट्रक्शन, हम डायरेक्टली कंस्ट्रक्शन कभी नहीं करते इतने बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स का. हमें सबसे पहले इनका मॉडल प्रिपेयर करना है ना. आपने सुने होंगे छोटे छोटे मॉडल बनाए जाते हैं, बड़े बड़े स्ट्रक्चर, डैम्स है, फिर उसके अलावा बड़े बड़े टरबाइन्स है, स्पिलवेज है. स्पिलवे मैंने आपको बताया था कि डैम का ही पार्ट होता है. ठीक है ना, फिर से रिमाइंड करा देता हूँ. जैसे कि आप देखते होंगे कि ये जैसे कि ये एक डैम स्ट्रक्चर हो गया. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये डैम का एक स्ट्रक्चर हो गया. ठीक है, तो आपने देखी होंगे कि इसमें एक बीच में इस तरीके से एक स्लोपिंग जो सरफेस होता है ना, जिसके ऊपर से वाटर फ्लो होता है. ठीक है ना, स्लोपिंग जो सरफेस होता है जिसके ऊपर से वाटर फ्लो होता है, तो इसे बोला जाता है, इसे जो बोला जाता है जिसके ऊपर से ये जो वाटर यहाँ से आता है, ठीक है ना, गेट ओपन होते हैं, फिर वाटर इसके ऊपर से फ्लो होता है. जिस फ्लोइंग जो ये स्लोपिंग सरफेस है जिसके ऊपर से वाटर फ्लो होता है, इसे बोला जाता है स्पिलवे, है ना. ये आपको बताया था मैंने पहले. ठीक है, तो ये स्पिलवे हो गया. तो जब स्पिलवे बनाना है, डैम बनाना है, टरबाइन बनाना है, पंप बनाना है, बड़ी बड़ी मशीन्स बनाना है, बड़े स्ट्रक्चर्स बनाना है, तो हम क्या करते हैं, स्पेशली हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर है. यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट चीज याद रखेंगे कि हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर जैसे कि डैम और स्पिलवे, इसमें वाटर से रिलेटेड है. हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर जब वाटर इनके कांटेक्ट में आता है ना, ये वाटर यहाँ पे टकराएगा, इसके ऊपर से जाएगा, तो हाइड्रोलिक एक तरह का प्रेशर बनता है, तो इसे हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर बोला जाता है. इसके ऊपर वाटर है, हाइड्रो मतलब वाटर, तो वाटर से रिलेटेड जो भी स्ट्रक्चर है जैसे कि डैम, टरबाइन, स्पिलवे, पंप, जिसमें वाटर ट्रैवल करता है, तो ऐसे स्ट्रक्चर्स को हम हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर्स बोलते हैं.
तो जब भी हम ये स्ट्रक्चर्स बनाने वाले होंगे या बनाएंगे, तो उससे भी पहले, बिफोर कंस्ट्रक्टिंग द एक्चुअल स्ट्रक्चर, वी हैव टू मेक वन मॉडल. ओके, वी हैव टू मेक मॉडल्स ऑफ दीज स्ट्रक्चर्स और दिस मशीन्स. ओके, पंप एंड टरबाइन. अब हाइड्रोलिक मशीन क्या है? मशीन मतलब जो क्या इलेक्ट्रिकली या इस तरीके से काम करेगी. तो टरबाइन और पंप क्या है? हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर नहीं है, हाइड्रोलिक मशीन्स है ना. तो पंप्स और टरबाइन के लिए भी हमको मॉडल बनाने पड़ते हैं, क्योंकि बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट बहुत बड़ा होता है इसमें. देखिए, मॉडल क्यों बना रहे हैं आप? क्या आपको बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होता है इसमें, पैसा काफ़ी लगता है. तो गलती से अगर कुछ प्रॉब्लम आए तो हम पहले ही उसको एनालाइज करने की कोशिश करते हैं. मॉडल एनालिसिस में क्या होता है कि मॉडल बनाया जाता है. जैसे कि इतना बड़ा डैम है, लेकिन जब हम इसका मॉडल बनाएंगे तो वो बहुत छोटा सा मॉडल बनेगा, उसका स्केल कम रहेगा उसका, ठीक है ना. स्केल कम करके उसका हम बहुत ही एक छोटा सा मॉडल बना देंगे कुछ इस तरीके से. ये एग्जांपल बता रहा हूँ, ये इसका एक मॉडल बना दिया हमने, बहुत छोटा सा मॉडल रहेगा वो, ठीक है ना. जो कि एक टेबल पे आ जाए या एक रूम में आ जाए, इतना छोटा मॉडल रहेगा. अब इस मॉडल के ऊपर हम एक्चुअली में वाटर को अप्लाई करेंगे, वाटर को छोड़ के देखेंगे कि किस तरीके से ये स्ट्रक्चर रिएक्ट कर रहा है, इसका मॉडल किस तरीके से रिएक्ट कर रहा है. ठीक है, इतने बड़े स्ट्रक्चर का हमने एक छोटा सा मॉडल बना दिया, इसीलिए इसको बोला जाता है मॉडल एनालिसिस. अब इसके ऊपर हम क्या करेंगे? फॉर प्रिडिक्टिंग द परफॉर्मेंस ऑफ हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर, यानी कि इस हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर की परफॉर्मेंस को प्रिडिक्ट करना है कि ये कैसा परफॉर्म करेगा, हाउ विल इट परफॉर्म इन एक्चुअल लाइफ, in actual work, actual case scenario, how it will perform. So, predicting the performance of the main structure, you have to make one model. For predicting the performance of the actual structure, we have to make one model. Okay, model of the structure. ठीक है ना. देखिए, अब फिर से इसको मैं पढ़ता हूँ, अब आपको सब क्लियर हो जाएगा. देखिए, फॉर प्रिडिक्टिंग द परफॉर्मेंस ऑफ हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर सच एज डैम, स्पिलवे और हाइड्रोलिक मशीन्स, यानी कि टरबाइन, पंप, बिफोर एक्चुअली कंस्ट्रक्टिंग और मैन्युफैक्चरिंग, यानी कि स्ट्रक्चर को पहले कंस्ट्रक्शन करने के भी पहले हमको एक छोटा सा मॉडल बनाना है उसका, इस तरीके से. ये जैसे कि एक डैम हो गया, ठीक है ना. यहाँ मैं लिख देता हूँ आप लोगों के लिए, ठीक है ना. ये जैसे कि डैम का होगा स्ट्रक्चर, तो इनका कंस्ट्रक्शन से भी पहले हमको इसका मॉडल बनाना है. मॉडल्स ऑफ द स्ट्रक्चर, देखिए आप नीचे देखिए, मॉडल्स ऑफ द स्ट्रक्चर्स और मशीन्स आर मेड एंड टेस्ट आर परफॉर्म्ड. अब इसके ऊपर हम टेस्ट करेंगे इसका हाइड्रोलिक वाटर का जो भी टेस्ट हमारे पास रहेंगे, स्ट्रक्चर टेस्ट रहेगा या उसका किस तरीके से वेलोसिटी, उतने ही वेलोसिटी पे हम वाटर को यहाँ पे छोड़ेंगे और किस तरीके से परफॉर्म करेगा उसके ऊपर और टेस्ट किए जाएंगे. और उसके बाद उसके रिजल्ट निकाले जाएंगे कि वेलोसिटी कितने पे वेलोसिटी होना चाहिए, कितनी वेलोसिटी पे वो सेफ है, ठीक है ना. इस तरीके से हम इसके टेस्ट निकाले, टेस्ट करके इसकी परफॉर्मेंस निकालेंगे और उसकी डिजायर्ड इंफॉर्मेशन निकालेंगे. फिर उसके हिसाब से हम देखेंगे कि इसमें कुछ चेंजेस रखना है कि नहीं. अगर चेंजेस करना है तो वो चेंजेस फिर एक्चुअल स्ट्रक्चर में भी होंगे, ठीक है, वो एक्चुअल स्ट्रक्चर में भी होंगे. ठीक है, तो सबसे पहले मॉडल एनालिसिस आपको समझ गया है करना क्या है. बड़े बड़े स्ट्रक्चर बनाने से पहले उनका मॉडल बनाना पड़ता है, उसके ऊपर टेस्ट करना पड़ता है ताकि उनकी डिजायर्ड इंफॉर्मेशन मिल जाए. ठीक है, समझ गया. अब आगे देखो आप. अब यहाँ पे देखो मॉडल क्या होता है, यहाँ पे समझने की कोशिश करो कि मॉडल क्या होता है. मॉडल इज द स्मॉल स्केल रेप्लिका ऑफ द एक्चुअल स्ट्रक्चर और मशीन. समझ रहा है? मॉडल यानी कि ये पार्ट हमने क्या किया, बड़े स्ट्रक्चर का एक स्मॉल रेप्लिका बनाए, ठीक है ना, स्मॉल रेप्लिका बनाए. तो ये जो स्मॉल रेप्लिका है इसे बोला जाता है मॉडल. मैं यहाँ लिख देता हूँ, दिस इज अ मॉडल. ओके, दिस इज अ मॉडल. ओके, ठीक है. तो ये जो स्मॉल रेप्लिका बना है, बड़े वाले डैम का जो स्मॉल स्ट्रक्चर बना, स्मॉल रेप्लिका बना, दिस इज कॉल्ड मॉडल. ओके, तो मॉडल इज द स्मॉल स्केल रेप्लिका ऑफ द एक्चुअल स्ट्रक्चर और मशीन, हमेशा याद रखेंगे.
मॉडल आपको क्या होगा, स्मॉल रेप्लिका, जो बड़ा स्ट्रक्चर है उसका स्मॉल रेप्लिका, छोटा वाला जो आप मॉडल बनाएंगे, छोटा जो स्ट्रक्चर बनाएंगे, दैट इज कॉल्ड मॉडल। ठीक है। दूसरा, द एक्चुअल स्ट्रक्चर और मशीन इज कॉल्ड प्रोटोटाइप। अब यहाँ पे क्लियर हो गया होगा आपको, जो एक्चुअल स्ट्रक्चर होता है हम उसको यहाँ पे एक्चुअल स्ट्रक्चर नहीं बोलेंगे, ये जो मेन स्ट्रक्चर है, जो एक्चुअली में हम बनाने वाले हैं, बड़ा स्ट्रक्चर जो जहाँ पे साइड पे हम बनाने वाले हैं, उसे हमेशा हम क्या बोलेंगे, द एक्चुअल स्ट्रक्चर और द मशीन इज कॉल्ड प्रोटोटाइप। ठीक है, समझ गया, मॉडल और प्रोटोटाइप। तो ये जो एक्चुअल स्ट्रक्चर हो गया, अब ये हो गया हमारा प्रोटोटाइप। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ प्रोटोटाइप। ठीक है, तो ये हो गया हमारा प्रोटोटाइप। थोड़ा सा इधर साइड में कर देता हूँ। तो दिस इज अवर प्रोटोटाइप। तो आपको डिफरेंस समझ गया, जो मेन स्ट्रक्चर है ये मेन स्ट्रक्चर ही है, प्रोटोटाइप मतलब मेन स्ट्रक्चर ही होता है। ठीक है, प्रोटोटाइप का मतलब होता है मेन स्ट्रक्चर और मॉडल का मतलब उसका स्मॉल रेप्लिका। ठीक है, तो ये दोनों का डिफरेंस आपको समझ गया। अब आगे देखते हैं। इट इज नॉट नेसेसरी दैट द मॉडल शुड बी स्मॉलर देन प्रोटोटाइप, दे मे बी लार्जर देन द प्रोटोटाइप। अब आप बोलोगे ये कैसा हो सकता है, अब यहाँ पे आप बोलोगे कि कैसा हो सकता है कि हमेशा प्रोटोटाइप से छोटा ही नहीं रहेगा मॉडल। ये क्वेश्चन जनरली आता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, इज मॉडल इज ऑलवेज स्मॉलर देन द प्रोटोटाइप और नॉट, यस और नो में आंसर रहता है इसका। लेकिन हमेशा मॉडल जो है वो छोटा नहीं रहेगा प्रोटोटाइप से, ऐसा कंपलसरी नहीं है, ऐसा कहीं लिखा नहीं है कि मॉडल हमेशा छोटा ही रहना चाहिए। दिस इज नॉट पॉसिबल because sometimes model is larger than the prototype. These are in some cases model is larger than the prototype. Generally हमेशा क्या होगा, प्रोटोटाइप बड़ा होता है। जैसे कि कोई बड़े बड़े स्ट्रक्चर है, सिविल इंजीनियरिंग में, सिविल में स्ट्रक्चर्स में जो बड़े स्ट्रक्चर्स है उनका मॉडल हमेशा छोटा बनेगा। बट ऐसे भी कुछ केसेस है, जैसे कि मेडिकल लाइन में ह्यूमन बॉडी के पार्ट्स, ह्यूमन बॉडी के पार्ट्स आप हमेशा देखते होंगे कि जब स्टूडेंट्स को समझाया जाता है, मेडिकल स्टूडेंट्स को, तो हमेशा क्या होगा, जैसे कि कोई भी आपके बॉडी का पार्ट हो गया, लंग्स हो गया, हार्ट हो गया, तो इसको हमेशा, ये जो एक्चुअली में इसका साइज होता है हार्ट का, इसको हम मॉडल जो बनता है इसका, प्रोटोटाइप क्या होगा आपका एक्चुअल हार्ट, बट लेकिन उसका जो मॉडल बनता है वो बनता है बड़ा, ताकि स्टूडेंट्स को आसानी से समझा सके जो प्रोफेसर है। तो इस तरीके से कई केसेस में मॉडल भी बड़ा होता है। अब इसका एक और एग्जाम्पल, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, इलेक्ट्रॉनिक मशीन के जो छोटे छोटे से पार्ट है, माइक्रो पार्ट्स जो है, अब इस माइक्रो पार्ट्स की डिटेल समझाना है किसी को, तो उसका जो मॉडल बनेगा एक्चुअल तो बड़ा छोटा सा है वो पार्ट, लेकिन उसका समझाने के लिए किसी को उसका मॉडल बनेगा बड़ा। ठीक है, तो ऐसा कई केसेस में होता है कि मॉडल बड़ा हो जाए और प्रोटोटाइप छोटा हो जाए, ऐसा भी होता है। ठीक है, यही लिखा है यहाँ पे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। द स्टडी ऑफ मॉडल ऑफ एक्चुअल मशीन इज कॉल्ड मॉडल एनालिसिस। यहाँ पे एक्चुअल स्ट्रक्चर भी हो सकता है। ठीक है ना, द स्टडी ऑफ मॉडल ऑफ एक्चुअल मशीन और स्ट्रक्चर इज कॉल्ड मॉडल एनालिसिस। अब आप जो स्टडी करने वाले हो मॉडल्स की, ठीक है ना, इस मॉडल की जो हम स्टडी करने वाले हैं इसे बोला जाता है मॉडल एनालिसिस। जो हमारा यूनिट नंबर 5 का नाम है मॉडल एनालिसिस करना। तो हम मॉडल की एनालिसिस करेंगे, उसमें अलग अलग क्या क्या चेंजेस है, क्या कैसा वो मॉडल है, क्या उसकी स्केल है, किस तरह परफॉर्म करता है, किस तरह उसमें डिस्चार्ज को कंपेयर करेंगे, हम प्रोटोटाइप और मॉडल को कंपेयर करेंगे तो उनके रिजल्ट्स देखेंगे, जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो उनके रिजल्ट्स भी देखेंगे। ठीक है, तो ये क्लियर हुआ आपको, और आगे पढ़ते हैं। मॉडल एनालिसिस इज एक्चुअली एन एक्सपेरिमेंटल मेथड ऑफ फाइंडिंग सॉल्यूशन ऑफ कॉम्प्लेक्स फ्लो प्रॉब्लम्स। यहाँ पे ये लाइन भी आपको समझ में आ रही होगी कि मॉडल एनालिसिस है क्या, ये हम एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं कि नहीं। जैसे अब आप, अच्छा एक और एग्जांपल देता हूँ, आप कभी एफएम लैब में देखे होंगे कि बड़े बड़े हाइड्रोलिक मशीन है, टरबाइन है, पंप है, उसका जो एक्चुअली में जो लैब में रखा है, लैब में जो चीज रखी है वो तो मॉडल है ना। और आसानी समझ गया होगा आपको, अभी लैब में जो रखा है, इतना बड़ा जो टरबाइन होता है, पंप होता है, उसके छोटे छोटे वहां पे मॉडल रखे हुए,
ये भी समझ गया आपको कि मॉडल क्या है, वो जो आपके लैब में रखे हुए हैं वो भी मॉडल है एक तरीके से, ठीक है। तो उसमें हम क्या करते हैं कि एक्सपेरिमेंटल मेथड ऑफ फाइंडिंग आउट सॉल्यूशन ऑफ कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम। अब उसमें हम अगर फ्लो ऑन करेंगे तो जो बड़े बड़े स्ट्रक्चर में कॉम्प्लेक्स फ्लो प्रॉब्लम है, हम उसमें छोटे स्केल पे उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे और आसानी से उसको चेंज करते जाएंगे। फ्लो की स्पीड को कम ज़्यादा कर सकते हैं हम उसमें, ठीक है ना, हम उसमें वेलोसिटी कम ज़्यादा कर सकते हैं जो मॉडल है, ताकि हम टेस्ट कर सकें कि वो परफॉर्म किस तरह करेगा स्मॉल स्केल पे। फिर एक्चुअल स्केल में उसकी बाकी सारी चीज़ें उसी हिसाब से बढ़ते जाएगी। स्केल का मतलब ही वो होता है, ठीक है ना, उसको एक्चुअल रेट पे उसको बढ़ाना, ठीक है। नेक्स्ट लाइन इज एग्जैक्ट एनालिटिकल सॉल्यूशन आर पॉसिबल ओनली फॉर लिमिटेड नंबर ऑफ फ्लो प्रॉब्लम। अब इसमें देखिए हमेशा हम एकदम एग्जैक्ट आंसर हमें नहीं मिलेगा, थोड़ा बहुत अप्रोक्सीमेट तो रहेगा। एग्जैक्ट जो आंसर मिलेगा वो कुछ ही चीज़ों के लिए पॉसिबल है, जैसे डिस्चार्ज है, वेलोसिटी है, इसके लिए हम एक्चुअल कर सकते हैं। थोड़ा बहुत कम ज़्यादा टाइम मैनेजमेंट वगैरह में, टाइम जैसे कि टाइम ट्रैवल वगैरह, ये थोड़ा बहुत कम ज़्यादा हो सकता है। तो हमेशा हमें हर सॉल्यूशन प्रॉपर नहीं हमेशा मिलेगा ऐसा ज़रूरी नहीं। कुछ चीज़ें, कुछ हमारे जो पॉइंट्स रहेंगे, जैसे आप अभी उसमें देखोगे न्यूमेरिकल में कि हम बहुत सारे वेरियस पॉइंट्स पे मॉडल और प्रोटोटाइप को कंपेयर करें। कई दफ़ा आप देखोगे कि थोड़ा सा मार्जिन से थोड़ा सा कम ज़्यादा होता है, एकदम एग्जैक्ट आना पॉसिबल नहीं है, बट फिर भी 99% रिजल्ट सेम होते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए द फॉलोइंग आर द एडवांटेजेस ऑफ डायमेंशनल एंड मॉडल एनालिसिस। अब हम देखते हैं कि जो हम इतना कर रहे हैं मॉडल एनालिसिस का ऑब्जेक्टिव क्या है, मतलब इसका एडवांटेज है क्या, हम इसे कर क्यों रहे हैं, ये चीज़ देखते हैं अभी हम। देखिए यहाँ पे सबसे पहला जो एडवांटेज है, ठीक है ना, वो देखिए द परफॉर्मेंस ऑफ द हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर और हाइड्रोलिक मशीन कैन बी इजीली प्रिडिक्टेड इन एडवांस फ्रॉम इट्स मॉडल। यानी कि हम एडवांस में पहले ही मॉडल के जरिए उसकी परफॉर्मेंस को पहले से ही अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो उससे क्या होगा, एक्चुअल जब आप अगर सपोज इसमें दो कंडीशन है, कीजिए पहली कंडीशन में आपने बिना मॉडल बनाए स्ट्रक्चर बना दिया, अब उसमें इतनी प्रॉब्लम्स आएगी वेलोसिटी स्ट्रक्चर को गेट्स के में, कंस्ट्रक्शन ऑफ गेट्स में, या सपोज वाटर की स्पीड पे, वेलोसिटी पे, डिस्चार्ज पे, आपको बहुत सारी चीज़ें साइड पे फिर फेस करना पड़ेगा। तो अगर इस चीज़ को अवॉइड करना है तो हमें सबसे पहले इसका मॉडल बनाना पड़ेगा। मॉडल बनाने के पहले, एक्चुअल स्ट्रक्चर बनाने के पहले जब आप मॉडल बनाते हो तो हम पहले से ही उसकी परफॉर्मेंस का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो किस तरह परफॉर्म करेगा, ठीक है। इसलिए ये एडवांटेजियस है कि आप मॉडल एनालिसिस उसकी करें। नेक्स्ट इज विद द हेल्प ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस a relationship between the variable influence of flow problems in terms of dimensional parameters is obtained. This relationship is conducting test on the model. इसमें अभी आप नेक्स्ट चीज जो नीचे आपको दिख रहा है सिमिलिट्यूड और सिमिलैरिटी, इसमें ये पॉइंट आपको क्लियर मैं कर दूंगा कि डायमेंशनल एनालिसिस जो आप पढ़ चुके हो FM1 में, ठीक है ना, इसमें हम बहुत सारे वेरिएबल्स हैं जैसे कि फ्राउड नंबर, ठीक है ना, ये जो मॉडल लॉज है, इसमें हम एक तरीके का दोनों में कंपैरिजन करेंगे प्रोटोटाइप और मॉडल, ठीक है ना। एक रिलेशनशिप देखेंगे हम मॉडल और प्रोटोटाइप के बीच में विद द हेल्प ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। डायमेंशनल जो नंबर्स है, डायमेंशनलेस नंबर्स है, उसकी मदद से मैं आपको बताऊंगा आगे कैसे करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट इज द मेरिट ऑफ अल्टरनेटिव डिजाइन कैन बी predicted with the help of model testing. The most economical and safe design may be finally adopted. जैसे कि मैंने बोला फॉर एग्जाम्पल आप कोई बड़ा स्ट्रक्चर बनाने वाले हो डैम का, अगर हम मॉडल बनाते हैं उसके ऊपर टेस्ट करते हैं तो हमको पता चलता जाएगा कि कहाँ पे फेल हो रहा है, कहाँ पे कहीं हम इकोनॉमिकल कर सकते हैं क्या, कहीं हम उसको स्ट्रक्चर के साइज़ को कम कर सकते हैं क्या। फ्लो अगर कम है तो हम स्ट्रक्चर के साइज़ को कम कर सकते हैं। अगर स्ट्रक्चर बेटर परफॉर्म कर रहा है तो हम उसका साइज़ कम करके और उसमें टेस्ट करके देखते हैं, तो उससे हमारा कॉस्ट भी बचता है। अल्टरनेटिव ऑप्शन हमारे पास आते आते, तो ये बहुत ही एडवांटेजेस है कि आप मॉडल बनाएं और उस पर टेस्ट करें, ठीक है। नेक्स्ट इज द टेस्ट परफॉर्म्ड ऑन द मॉडल कैन बी यूटिलाइज्ड फॉर ऑब्टेनिंग इन एडवांस यूजफुल इंफॉर्मेशन अबाउट द परफॉर्मेंस ऑफ प्रोटोटाइप ओनली इफ अ कंप्लीट सिमिलैरिटी एग्जिस्ट बिटवीन द मॉडल एंड प्रोटोटाइप। यहाँ पे जब हम टेस्ट परफॉर्म करते हैं, ठीक है ना, मॉडल्स पे, ठीक है ना, तो उसमें हमें जो भी यूजफुल इंफॉर्मेशन मिलती है वो हमारे काम आती है प्रोटोटाइप की परफॉर्मेंस निकालने के लिए। लेकिन ये कब होगा, जब प्रोटोटाइप और मॉडल में सिमिलैरिटीज हो।
अब फॉर एग्जांपल सिमिलैरिटीज होगा मतलब मैं आपको बताता हूँ। मॉडल है, प्रोटोटाइप है। प्रोटोटाइप में डैम है, उसमें एक्चुअली में क्या फ्लो होगा, लिक्विड कौन सा है, वाटर। लेकिन अगर हम मॉडल में लिक्विड कोई ऑयल ले ले तो सिमिलैरिटी एग्जिस्ट नहीं करेगी। अगर मॉडल की प्रोटोटाइप की एक पर्टिकुलर हाइट है, अगर हमने उसकी स्केल कम की है, लेकिन अगर हमने स्केल को चेंज नहीं किए, कुछ भी अपने हिसाब से मॉडल का साइज ले लिया छोटा करके, तो पॉसिबल नहीं है, सिमिलैरिटी एग्जिस्ट ही नहीं करेगी। मॉडल और प्रोटोटाइप सिमिलर होना चाहिए, जिसे हम बोलते हैं सिमिलिट्यूड, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा। नेक्स्ट जो चीज़ है हम वही पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ सिमिलैरिटी। हमें मॉडल और प्रोटोटाइप में, जब हम प्रोटोटाइप जो एक्चुअल स्ट्रक्चर है उसका जब हम मॉडल बनाएंगे, तो कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें सेम रखनी है, यानी कि सिमिलैरिटी उसमें मेंटेन करनी है। अगर सिमिलैरिटी मेंटेन करेंगे मॉडल और प्रोटोटाइप में, तभी आपको नॉट अप्रॉक्सीमेट, एक्यूरेट रिजल्ट्स मिलेंगे। ओनली इफ द similarities between model and prototypes are similarity exists between model and prototype, only in that case we will get the correct information. Okay, otherwise the information may not be correct or it may be approximate. So we will have to ensure that the model and prototype should be similar on certain basis. We will see what are those similarities. Okay, what are the points on which it should be similar. Okay, the next topic is similitude or types of similarities. ठीक है, चलिए देखते हैं सिमिलिट्यूड या सिमिलैरिटी क्या होती है। ठीक है, सिमिलिट्यूड इज डिफाइंड एज द सिमिलैरिटी बिटवीन मॉडल एंड प्रोटोटाइप इन एवरी एस्पेक्ट, which means the model and prototype have similar properties, or model and prototype are completely similar. Three types of similarity must exist between model and prototype. सिमिलिट्यूड का मतलब क्या होता है कि सिमिलैरिटी मॉडल और प्रोटोटाइप के बीच में इन एवरी एस्पेक्ट। इसका मतलब होता है मॉडल एंड प्रोटोटाइप के पास सिमिलर प्रॉपर्टीज है, मॉडल और प्रोटोटाइप एक दूसरे से कम्प्लीटली सिमिलर है। तीन तरह की सिमिलैरिटी होती है मॉडल और प्रोटोटाइप के बीच में। ये तीन तरह की सिमिलैरिटी हमेशा एग्जिस्ट होना चाहिए मॉडल और प्रोटोटाइप के बीच में। नाउ वी विल सी व्हाट आर दीज थ्री सिमिलैरिटीज। सबसे पहले है ज्योमेट्रिकल सिमिलैरिटी। देखिए नाम से इंडिकेट हो रहा है जो ज्योमेट्रिकली सिमिलर हो, तो यहाँ पे देखिए क्या करना है। द ज्योमेट्रिकल सिमिलैरिटी इज सेड टू एग्जिस्ट बिटवीन मॉडल एंड प्रोटोटाइप। द रेशियो ऑफ ऑल कोरस्पॉन्डिंग लीनियर डायमेंशन इन द मॉडल एंड प्रोटोटाइप आर इक्वल। अब यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, जैसे कि एक हम एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि एक ये बड़ा सा कोई बॉक्स है। अब इसका एक छोटा सा हमने मॉडल बनाया, ये इसका प्रोटोटाइप हो गया, ये इसका मॉडल हो गया। ठीक है ना। अब ज्योमेट्रिकली अगर ये दोनों सिमिलर रखना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसकी जो स्केल है इसे सिमिलर रखना पड़ेगा। ठीक है ना। ज्योमेट्रिकली सिमिलैरिटी सेड टू एग्जिस्ट बिटवीन मॉडल एंड प्रोटोटाइप इज द रेशियो, यहाँ पे ध्यान दीजिए, रेशियो ऑफ ऑल कोरस्पॉन्डिंग लीनियर डायमेंशन इन द मॉडल एंड प्रोटोटाइप आर इक्वल। यानी कि ठीक है ना, जो लीनियर डायमेंशन का रेशियो है वो सेम होना चाहिए मॉडल और प्रोटोटाइप का। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ, जैसे कि आप यहाँ पे देखिए, अज्यूम कीजिए कि LM का मतलब होता है यहाँ पे लेंथ ऑफ मॉडल। जैसे कि ये मॉडल है तो इसकी जो लेंथ है, हम अज्यूम कीजिए कि ये जो लेंथ है ये LM है, और जो विड्थ है, ठीक है ना, जो विड्थ हम मान लेते हैं वो है मॉडल की BM। ठीक है। सिमिलरली कोई भी अगर सर्कुलर है तो डायमीटर जो है वो DM हो जाएगा, एरिया मॉडल का AM हो जाएगा, वॉल्यूम मॉडल का VM हो जाएगा। तो इस तरीके से हम एक एग्जांपल लेते हैं। सिमिलरली LP, BP, DP एंड AP एंड VP, ये क्या हो गया हमारा कोरस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ प्रोटोटाइप। ठीक है। ये जो P वर्ड जहाँ जहाँ पे आएंगे वो दैट इज कोरस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ प्रोटोटाइप। ठीक है। तो अब देखिए ज्योमेट्रिकली सिमिलर कैसा होगा। LP, ठीक है ना, LP डिवाइड बाय LM, यानी कि लेंथ ऑफ प्रोटोटाइप डिवाइड बाय लेंथ ऑफ मॉडल इज इक्वल टू, ध्यान से देखिए, width of prototype divided by width of model and diameter of prototype divided by diameter of model is equal to LR। LR का मतलब होता है स्केल रेशो। ये स्केल रेशो हमेशा सेम आना चाहिए, यानी कि स्केल रेशो, विड्थ, डायमीटर और लेंथ, ये तीनों का सिमिलर होना चाहिए। ठीक है, तब जाके हम बोल सकते हैं कि ज्योमेट्रिकली ये सिमिलर है।
ठीक है। तो इस तरीके से हमेशा जो स्केल रेशो है वो इस तरीके से सेम आना चाहिए। तो जो लीनियर डायमेंशन है, जो रेशो है लीनियर डायमेंशन का, वो हमारा इक्वल आना चाहिए मॉडल और प्रोटोटाइप के बीच में। ठीक है, ये मतलब होता है इसका। ठीक है, रेशो इसका सेम आना चाहिए। अब उसके बाद में देखिए, ठीक है, एलआर का मतलब क्या होता है, स्केल रेशो। फॉर एरियाज रेशो एंड वॉल्यूम रेशो द रिलेशन शुड बी एज गिवन एज। अब देखिए एरिया के लिए कैसा निकालेंगे, जैसे कि एरिया ऑफ प्रोटोटाइप डिवाइड बाय एरिया ऑफ मॉडल। अगर आपने ऐसा करते हैं कि मॉडल का प्रोटोटाइप का एरिया डिवाइड बाय एरिया ऑफ मॉडल, तो एरिया ऑफ प्रोटोटाइप, जैसे क्या ये एक प्रोटोटाइप हो गया, तो इसका एरिया क्या होगा, लेंथ इंटू विड्थ। सो लेंथ ऑफ प्रोटोटाइप मल्टीप्लाइड बाय विड्थ ऑफ प्रोटोटाइप डिवाइड बाय एरिया ऑफ मॉडल, लेंथ ऑफ मॉडल इंटू विड्थ ऑफ मॉडल। तो अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, एल पी डिवाइड बाय एल एम, एल पी डिवाइड बाय एल एम का मतलब होता है एल आर, तो हमने यहाँ पे एल आर लिख दिया। बी पी डिवाइड बाय बी एम का मतलब भी होता है एल आर, तो हम मल्टीप्लीकेशन में क्या आ गया, एक और एल आर, तो एल आर स्क्वायर। सो एरिया रेशो में क्या आ जाएगा, एल आर स्क्वायर, याद रखिए। ठीक है, एरिया रेशो में आ जाएगा एल आर स्क्वायर। इस तरीके से निकालते। सिमिलरली वॉल्यूम को आपको चेक करना है, तो वॉल्यूम ऑफ प्रोटोटाइप डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ मॉडल, ये कितना आएगा ऐसा आपको देखना है। सिमिलरली देखो यहाँ पे वही होगा, वॉल्यूम देखिए यहाँ पे एल पी डिवाइड बाय एल एम क्यूब हो जाएगा कि नहीं, लेंथ क्यूब, ठीक है ना, इज इक्वल टू विड्थ क्यूब, बी पी डिवाइड बाय बी एम इज इक्वल टू डायमीटर का क्यूब, बी पी डिवाइड बाय डी एम। तो इस तरीके से सिमिलरिटी एग्जिस्ट करना चाहिए, और इसका आंसर भी एल आर क्यूब आ जाएगा। फिर यहाँ पे इज इक्वल करेंगे तो एल आर क्यूब आ जाएगा। तो इस तरीके से ज्योमेट्रिकली सिमिलर होता है, ये याद रखेंगे। ठीक है ना, लीनियर डायमेंशन उसकी सेम होना चाहिए। तो ये हो गई हमारी ज्योमेट्रिकली सिमिलर। इस केसेस पे ज्योमेट्रिकली सिमिलर होगा। सिमिलरली अब देखते हैं हम काइनेमेटिक सिमिलैरिटी क्या होती है। देखिए, काइनेमेटिक सिमिलैरिटी मीन्स द सिमिलैरिटी बिटवीन मोशन, सिमिलैरिटी ऑफ मोशन। ठीक है, यहाँ पे मोशन जो यहाँ पे मीनिंग है, मतलब ये रिलेटेड टू वेलोसिटी समथिंग है। ठीक है, ठीक है, मोशन बिटवीन मॉडल एंड प्रोटोटाइप, सिमिलैरिटी ऑफ मोशन बिटवीन मॉडल एंड प्रोटोटाइप। Thus, kinematic similarity is said to exist between model and prototype if the ratio of velocity and acceleration at the corresponding points in the model and the corresponding point in the prototype are same। ठीक है, मोशन का मतलब मीनिंग यहाँ पे क्या होगा, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन जो है किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पे इनका जो रेशो है वो सेम होना चाहिए। ठीक है, आगे देखते हैं। Since the velocity and acceleration are vector quantities, hence not only the ratio of magnitude of velocity and acceleration at the corresponding points in the model and prototype should be same, but the direction of velocity and acceleration at the corresponding point in the model and prototype should be parallel। यहाँ पे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी में जो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन है दोनों सेम होना चाहिए। तो साथ ही साथ मैग्नीट्यूड भी सेम रहेगा रेशियो का, सिमिलरली उनका डायमेंशन भी, ये जो डायरेक्शन है वो भी पैरेलल होना चाहिए। ठीक है, इसको आप एग्जांपल के तौर पे देखते हैं। फॉर एग्जांपल Vp1 क्या हो गया, वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड एट पॉइंट 1 इन प्रोटोटाइप, यानी कि एक्चुअल स्ट्रक्चर में जो पॉइंट 1 पे है वेलोसिटी, उसे हम Vp1 बोलेंगे। पॉइंट 2, जैसे कि एक हम एग्जांपल ले लेते हैं, ये एक पाइपलाइन हो गई हमारी, ये मॉडल की हमारी पाइपलाइन हो गई है, और ये हमारा एक छोटा सा प्रोटोटाइप है, ये उसकी पाइपलाइन हो गई। एक एग्जांपल के तौर पे देखते हैं, यहाँ पे दो पॉइंट आ रहे हैं, ये पॉइंट 1 हो गया, ये पॉइंट 2 हो गया। सिमिलरली मॉडल में भी पॉइंट 1 और पॉइंट 2 हो गया। ठीक है, देखिए ये पॉइंट 1 है, ये पॉइंट 2 है। ठीक है ना, यहाँ पे मैं आपके लिए लिख भी देता हूँ इसे। ये जो है हमारा Vp1 हो गया, ये हमारा हो गया Vp2। ठीक है, वेलोसिटी ऑफ प्रोटोटाइप एट पॉइंट 2, वेलोसिटी ऑफ प्रोटोटाइप एट पॉइंट 1। सिमिलरली मैं यहाँ पर अब देखिए यहाँ पे समझाने की आपको कोशिश करता हूँ। यहाँ पे मैं इसको Vm भी ले सकता हूँ। अब ये जो मॉडल है इसमें ये हो गया Vm1, Vm1 हो गया। सिमिलरली मॉडल में इस पॉइंट पर ये हो गया हमारा Vm2, Vm2 हो गया। ये एक मॉडल हो गया, ये प्रोटोटाइप हो गया। ठीक है, टर्म समझ में आ गया।
अब उसके अलावा हम एक चीज़ और ले लेंगे कि इस पॉइंट पे एक्सेलरेशन AP1 हो जाएगा प्रोटोटाइप में, और इस पॉइंट पे एक्सेलरेशन AP2 हो जाएगा, ठीक है। सिमिलरली VM1 VM2 AM1 AM2 जो हो गया वेलोसिटी और एक्सेलरेशन है पॉइंट 1 और 2 पर रिस्पेक्टिवली। अब आपको प्रूव करना है दैट दीज आर काइनेमेटिकली सिमिलर। काइनेमेटिकली सिमिलर होने के लिए आपको क्या देखना पड़ेगा? फॉर काइनेमेटिकली सिमिलैरिटी वी मस्ट हैव BP1, यानी कि ये जो BP1 वेलोसिटी एट पॉइंट 1 एंड प्रोटोटाइप डिवाइड बाय वेलोसिटी ऑफ मॉडल वेलोसिटी एट पॉइंट 1 इन मॉडल VM1, यानी कि BP1 डिवाइड बाय VM1 BP2 डिवाइड बाय VM2 शुड बी सेम, और ये क्या होगी? VR के बराबर होगी। VR का मतलब होता है वेलोसिटी रेशियो। ये VR जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, ये VR जो है ये दोनों सेम आना चाहिए, ठीक है ना, ये दोनों जो है वो सेम आना चाहिए, ठीक है, पॉइंट 1 और पॉइंट 2 पे किसी, ठीक है ना, इस पॉइंट्स पर वेलोसिटी जो है वो सेम आना चाहिए, ठीक है। सिमिलरली एक्सेलरेशन में भी यही केस होगा, AP1 डिवाइड बाई AM1 इज इक्वल टू AP2 डिवाइड बाई AM2, इट इज इक्वल टू AR। AR मतलब एक्सेलरेशन रेशियो, ठीक है। ऑल्सो द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटीज इन द मॉडल एंड प्रोटोटाइप शुड बी सेम, यानी कि मॉडल और प्रोटोटाइप में जो वेलोसिटी का डायरेक्शन है वो भी सेम होना चाहिए, यानी कि अगर ये इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है तो मॉडल में भी वो इसी डायरेक्शन में फ्लो करना चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है ना। वेलोसिटी और एक्सेलरेशन जो है वो वेक्टर क्वांटिटी, यानी कि इनका मैग्नीट्यूड और डायमेंशन दोनों जो है वो सेम होना चाहिए, स्केल वाइज दोनों सेम होना चाहिए, ठीक है। तो ये थी डायनामेटिक सिमिलैरिटी। नेक्स्ट चीज देखेंगे हम डायनामिक सिमिलैरिटी, ठीक है। डायनामिक सिमिलैरिटी में क्या होगा? डायनामिक सिमिलैरिटी मतलब ये रिलेटेड टू फोर्स है, इतना तो क्लियर होना चाहिए। काइनेमेटिक में रिलेटेड टू मोशन यानी कि वेलोसिटी एक्सेलरेशन, लेकिन जब हम डायनेमिक की बात करेंगे so it is related to force. So dynamic similarity means the similarity of forces between model and prototype. Thus dynamic similarity is said to be exist between model and prototype if the ratio of corresponding forces acting at a corresponding point are equal. Also the direction of corresponding forces and the corresponding point should be same. बिल्कुल सिमिलर है जैसा हमने अभी केस देखे। अब आप अज्यूम कीजिए कि इस पॉइंट पर फोर्स आ गई है, दोनों पॉइंट पर इस पर भी फोर्स आ गई है, ठीक है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो Fi1 इनर्शिया फोर्स एट पॉइंट इन प्रोटोटाइप, Fb का मतलब होता है विस्कस फोर्स एट पॉइंट इन प्रोटोटाइप। दो हम फोर्स लेते हैं, एक इनर्शिया एक विस्कस। सिमिलरली Fg मतलब ग्रेविटी फोर्स एट इन प्रोटोटाइप, यानी कि प्रोटोटाइप में तीन फोर्सेज ले लो, इनर्शिया विस्कस ग्रेविटी। सिमिलरली मॉडल में भी तीनों पॉइंट पर तीन फोर्स ले लेंगे, जिसे हम इनर्शिया विस्कस और ग्रेविटी फोर्स बोलेंगे, बट वो मॉडल में अप्लाई करेंगे। तो जो रेशो आएगा मॉडल प्रोटोटाइप डिवाइड बाय मॉडल इनर्शिया फोर्स, प्रोटोटाइप डिवाइड बाय मॉडल विस्कस फोर्स, प्रोटोटाइप डिवाइड बाय मॉडल ग्रेविटी फोर्स, इसका जो रेशो आएगा Fr, ठीक है ना, ये तीनों सेम होना चाहिए, ठीक है, दिस थ्री शुड बी इक्वल। ऑल्सो जो डायरेक्शन ऑफ फोर्स है, जिस डायरेक्शन में, जैसा अभी हमने देखी कि इस डायरेक्शन में वेलोसिटी, तो इस डायरेक्शन में भी अगर फोर्स लगेगी तो इसी डायरेक्शन में दोनों में लगना चाहिए, ठीक है। सो ऑल्सो द डायरेक्शन एट द कोरस्पॉन्डिंग फोर्सेज एट द कोरस्पॉन्डिंग पॉइंट इन मॉडल एंड प्रोटोटाइप शुड बी सेम, ठीक है। तो इस तरीके से फोर्सेज भी सेम है। तो आप ये सिमिलैरिटी समझ गए होंगे, ठीक है। जो सिमिलैरिटी है, LR का मतलब स्केल रेशो होता है, VR का मतलब वेलोसिटी रेशो होता है, ठीक है। सिमिलरली AR का मतलब एक्सेलरेशन रेशो, FR का मतलब फोर्स रेशो। तो इस तरीके से हमको ये आइडेंटिफाई करना है। अब उसके बाद आपको एक शॉर्ट में एक चीज़ बता देता हूँ, वैसे तो ये आप पढ़ चुके हैं, और शॉर्ट में हम इसको बता देता हूँ आपको। जो फोर्सेस होती है, जो अप्लाई मूविंग फ्लूइड पे जो अप्लाई होती है, कौन कौन सी होती है? इनर्शिया फोर्स, विस्कस फोर्स, ग्रेविटी, प्रेशर, सरफेस टेंशन और इलास्टिक फोर्स। इनर्शिया फोर्स क्या होती है? इट इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन ऑफ फ्लोइंग फ्लूइड and act in the direction opposite to the direction of acceleration. It always exists in the fluid flow problems. जो भी डायरेक्शन ऑफ फोर्स है उसका जो अपोजिट एक जो थ्रस्ट लगता है उसे हम हमेशा इनर्शिया फोर्स बोलते हैं, हर जगह इनर्शिया फोर्स होती है। विस्कस फोर्स आपको पता ही है, विस्कोसिटी से रिलेटेड है। इट इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ shear stress due to viscosity and surface area of flow. It is present in fluid flow problems where viscosity is having an important role to play. विस्कोसिटी फोर्स आप पढ़ चुके हैं विस्कोसिटी के बारे में SM1 में।
ग्रेविटी आपको पता है, जो एक स्लोप से अगर पानी फ्लो हो रहा है तो ग्रेविटी फोर्स लगती है, तो ये क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ द फ्लोइंग फ्लूइड, इट इज प्रेजेंट इन केस ऑफ ओपन सरफेस फ्लो। पाइप फ्लो में नहीं होता है, लेकिन ओपन चैनल फ्लो में जो ग्रेविटी से फ्लो होता है उसमें ये फोर्स होता है। प्रेशर फोर्स हमेशा पाइपलाइन में होता है, इट इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर इंटेंसिटी एंड क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ फ्लोइंग फ्लूइड, इट इज प्रेजेंट इन केस ऑफ पाइप। ये भी आपको पता है कि पाइप फ्लो में प्रेशर फोर्स होता है। सरफेस टेंशन, ठीक है ना, सरफेस टेंशन आपने देखे है, एक ओपन सरफेस एरिया में होता है ऊपर टॉप पर, इट इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ सरफेस टेंशन एंड लेंथ ऑफ सरफेस ऑफ फ्लोइंग फ्लूइड, ठीक है ना, फ्री सरफेस पे होता है। सिमिलरली इलास्टिक फोर्स जो है, it is equal to the product of elastic stress and area of flowing fluid. For a flowing fluid, above mentioned forces may not always be present, and also forces which are present in the fluid flow problem are not equal in magnitude. There are always one or two forces which dominate the other forces. These dominating forces affect the flow of fluid. हमेशा ये फोर्सेस हर एक फ्लो में होगी ऐसा पॉसिबल नहीं है, कहीं पर कम ज़्यादा होगी, सेम होगी, ये भी पॉसिबल, ये लिखा है इसमें, ठीक है। तो ये था हमारा फोर्सेस के बारे में। नेक्स्ट एक आपको इम्पोर्टेंट चीज़ बता देता हूँ मैं। एक्चुअली इसको हम एक काम करते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे डायमेंशनल एनालिसिस, क्योंकि इसके साथ में जो कनेक्शन है वो नेक्स्ट टॉपिक का आपको पहले इसे पढ़ना पड़ेगा, फिर वो नेक्स्ट, तो इसे हम नेक्स्ट टॉपिक में ही करेंगे, बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। ये आप ऐसे डायमेंशनल एनालिसिस में पढ़ चुके हैं, बट फिर भी हम इसको रिपीट करेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट लेक्चर में अगर आज का इसमें कुछ प्रॉब्लम है तो पूछ लीजिए, ठीक है। थैंक यू सो मच। हाँ, एक चीज़ और, ये जो बुक से अभी जो हम पढ़ रहे हैं, ये आर के बंसल की बुक है, अच्छी बुक है, आप लोग इसे ले सकते हैं, ठीक है।